So prokaryotic cell, bacterial cell, लिखते जाना है जो मैं बोल रही हूं. Bacterial cell, outside is cell wall, inner to cell wall is plasma membrane. And write down that plasma membrane is universal. It is present in all the living cells. Write down. Plasma membrane is universal in occurrence. Because everybody, 19, boys, likh lo bache. Because it is present in all the living cells, plant cell, animal cell, bacterial cell, fungal cell, protozoal cell, कोई सा cell हो, it is plasma membrane is present. Prokaryote, they have no true nucleus, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है. This is DNA, or it is called as nucleoid, or it is called as xenophore. एक ही बात है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट. True nucleus absent as DNA not covered by nuclear membrane. No organelles are present except ribosomes. Ribosomes है, कुछ vacuoles है. So important करके लिखो कि ribosomes are the structures. Write down, ribosomes are the structures present in both prokaryotes and eukaryotes. PK means prokaryotes, EK means eukaryotes. Ribosome सिर्फ ऐसे structures है जो prokaryotic cell और eukaryotic cell दोनों में present है. ठीक है. What is genophore? आपको पता चल गया. And this is bacterial cell. No membraned organelles prokaryotes में. No membrane bound organelles. तो राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं. देन यूकैरियोट्स, अगर हम प्लांट सेल देखें, ध्यान से इधर, दिस इज सेल वॉल. इनर टू सेल वॉल इज प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिखो जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. किसके बने होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन
Write down, plasma membrane is selectively permeable. Why? Because it allows certain molecules to pass inside and do not allow other molecules. ये कुछ ही molecules को, selective molecules को write down why it is selectively permeable. लिख लो इसके साथ साथ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ इधर स्क्रीन की तरफ ध्यान हो, बाकी सब छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास. So selectively permeable because it allows certain substances to pass through, whereas do not allow other substances. कुछ को पास करने देती है, कुछ को नहीं करने. Then plant cell में सेंटर में क्या प्रेजेंट है? Sap vacuole. This is sap vacuole. It maintains, लिखो जरा, it maintains turgidity. Turgidity मतलब toughness. Turgidity of plant cell. Write down, sap vacuole क्या function है? It maintains turgidity of the plant cells. And then here it is present nucleus. This is nucleus. Nuclear membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. स्ट्रक्चर बनाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जल्दी से क्वेश्चन आ जाता है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है? कुछ भी नहीं है. इस तरह से आपने बना देना है. दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है. दीज आर राइबोसोम्स. दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या फंक्शन है? दैट इज synthesize fats. Helps in detoxification of substances. ड्रग्स वगैरह जो हम दवाइयां लेते हैं, उसमें अगर टॉक्सिक केमिकल्स है तो डिटॉक्सिफाई. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize proteins. सिंपल यही लिखो, synthesize proteins. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मेन फंक्शन है? दैट इज सिंथेसाइज प्रोटीन्स बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गिव इट्स फंक्शन. देन देयर आर प्रेजेंट, you know,
This is mitochondria, powerhouse of the cell. This is mitochondria. Draw करो diagram जल्दी से. अच्छा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन लिखो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे लिख लो रिपेयर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, रीजनरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स. राइट डाउन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शन लिखिए रीजनरेशन. एवरीबॉडी नाइन्थ है बॉयज. Smooth endoplasmic reticulum, write down the function that it helps in a regeneration of membranes. Then mitochondria. Powerhouse of the cell. ये देखिए, ये है outer membrane. ये स्ट्रक्चर है, इसका अपना डीएनए है. ये देखिए, इसका अपना डीएनए है. इसके पास अपने राइबोसोम्स भी है. बाकी तो इसका मैट्रिक्स है. बनाओ डायग्राम. डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट है बेटा. और यहाँ पे ये रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं. This is outer membrane. Inner membrane. इसको बोलते हैं क्रिस्टे. डीएनए. ग्रीन कलर के ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, राइबोसोम्स. Why powerhouse of the cell? Because mitochondria is the site of respiration, aerobic respiration. It is the site of aerobic respiration which generates energy, or you can say ATP. और ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. देन और क्या प्रेजेंट है? Then there are present Golgi bodies. This is Golgi bodies. ये रब कर दूं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का. सबने बना लिया? एनीबडी लेफ्ट? प्लीज रेज योर हैंड्स. करो करो, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ.
गोल्जी बॉडीज इस तरह से नजर आते बेटा। फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, लिख लो जल्दी से। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय। फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स synthesized by rough endoplasmic reticulum. सेकेंड फंक्शन क्या है? दैट इज इट अटैच ग्लूकोज with some proteins. इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। Then another is in animal cells, plants में नहीं, in animal cells it means Golgi body form lysosomes. You know lysosomes are absent in, यहाँ पे लिख लेना absent in plant cells. Lysosomes are absent, present only in animal cells, absent in plant cells. Lysosomes, क्वेश्चन लिखिए। Lysosomes are suicidal bags. Why? Lysosomes are suicidal bags. Plant cells में है. They are called as suicidal bags. Why? Because if they get ruptured, अगर lysosome rupture कर जाएंगे तो जो उसके अंदर enzymes है they kill its own cell. So write down the answer. If the lysosomes gets ruptured, if the lysosomes, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली आ जाता है कि why lysosomes are called as suicidal bags, because if lysosomes get ruptured, its digestive enzymes digest its own cell. Its digestive enzyme digest its own cells, अपना सेल ही खत्म कर देती हैं. Then in plant cells, you know, और क्या present होता है? That is chloroplast. That is kitchen of the plant cells. This is chloroplast, where photosynthesis occurs. Chloroplast, kitchen of the plant cells, where photosynthesis occurs. This is cytoplasm. Then these are ribosomes. ये जो थोड़े से बड़े वाले हैं. These are ribosomes meant for protein synthesis. Ribosomes का क्या function है? Protein synthesis. There are present three solutions. एक्सक्यूज जी बेटा बोलो. करवा देना, हम ये बायो की हमारी हो गई है।
ये वाला हो गया है सारा? Yes. प्लाज्मोलिसिस हो गया है। 2 मिनट 5 मिनट हम लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स की क्लास लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। फिजिक्स की लगनी है बेटा, क्लास आपकी लगनी है। मुझे बस सेल का थोड़ा सा रिवाइज करा है ना। 3 सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन ए, बी, सी। इसमें अगर हम प्लांट सेल डालते हैं, इसमें अगर हम प्लांट सेल डाल देते हैं, नो चेंज इन साइज। यहां पे मैं डायग्राम नहीं बना रही, दैट इज स्वेलिंग ऑफ प्लांट सेल्स। और जब इसमें प्लांट सेल डालते हैं तो आपको प्लांट सेल कैसा नजर आता है? दैट दिस इज सेल वॉल, this is cell wall, this is plasma membrane, this is vacuole। तो आप देख रहे हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे द सेल श्रिंक्स। जल्दी से बता दो बेटा, कौन कौन सी ये सॉल्यूशंस है? यस, नाइन्थ ही में somebody टेल। मैम किसी बच्चे को खड़ा करो, माइक ऑन करवा दो और आंसर भी बताएंगे। आजा बेटा आजा, आ जाओ। इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बेटा इस पे। हाँ बोलिए। The solution in which the plant cell swells is hypotonic solution. दिस इज हाइपोटोनिक, बिल्कुल ठीक है। जिसमें स्वेल करता है उसमें पानी ज्यादा है, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस वन इज Hypotonic. हाइपर, हाइपर जिसमें Hyper. सॉल्ट ज्यादा है। हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है। एंड द प्रोसेस, टेल मी, द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड एज, it is called as plasmolysis। एवरीबडी राइट डाउन, बैठो। अच्छा ये भी सॉल्यूशन बता दो बेटा मुझे। Isotonic. इज आइसोटोनिक, बिल्कुल ठीक है। सो राइट डाउन, बैठो बेटा, वेरी गुड। प्लाज्मोलिसिस क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? दैट इज श्रिंकिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लो, shrinking of the plasma membrane from the cell wall, from the cell wall when the plant cell is placed in, when the plant cell is placed in hypertonic solution, hypertonic solution, shrinking of the plasma membrane from the cell wall when the plant cell is placed in hypertonic solution। इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मोलिसिस की? बेटा वी एड lot of salt and sugar in pickles, chutneys, etc। तो ये एक तो टेस्ट तो देते ही देते हैं। दिस causes plasmolysis of bacterial and fungal cells।
हम क्यों डालते हैं इतने सारा नमक और शुगर? क्योंकि उसमें जो, और कभी अगर आप देखें ना, एक जनरल सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा ने चटनी बनाई है, उसके ऊपर थोड़ी फंगल की ग्रोथ आती है, तो आपकी मम्मा क्या करती है, कोई बात नहीं, फंगल की लेयर उतारो, चटनी को दोबारा से गर्म करो और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दो, है ना, खुद ठीक हो जाएगा, फंगल स्पोर्स सारे मर जाएंगे। सो दिस इज सेकेंड। एक और हम इंपॉर्टेंस बता लें, कम से कम दो तो हमें पता हो। सेकेंड इज salting of golf grounds. जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं वहां पे रेगुलर सॉल्ट डालते हैं टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स। टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स। हमारी दीवारों में छोटे छोटे, छत पे छोटे छोटे प्लांट्स, वीड्स ग्रो कर जाए तो कुछ मत करो, उसकी जड़ों में, है तो गलत है किसी बेचारे जिंदा प्लांट को मारना, बट क्या करें, तो उसकी जड़ों में नमक डाल दो ज्यादा सा, दैट वीड्स गेट्स करेक्ट। ठीक है, दिस इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज जो मैं आपको आई होप आती होगी, दैट इज डिफरेंस इन, लिख लेना क्योंकि सेल डिवीजन है इसमें, इस चैप्टर में। सो डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ड्रॉ डायग्राम्स of mitosis of a cell having chromosomes 2n is equal to 4, 2n is equal to 6, 4 मतलब 2 pairs, 1 pair ये है, 1 pair ये है, 6 means 3 pairs। इसकी माइटोसिस कैसे होगी, बुक में देखना, डायग्राम्स बने हुए हैं, ये बनना। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन? 9th C, जल्दी से somebody tell, out of mitosis and meiosis which is equational division? जल्दी से आ जाओ ताकि फिजिक्स की क्लास लगे आपकी। हाँ जी मैम, किसी स्टूडेंट को भेजिए प्लीज। 9th C, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फर्स्ट बॉय आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे जो है आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आवाज नहीं आ रही? Mitosis. Mitosis and why meiosis is called as reductional, ये भी बता दे बेटा। Because it reduces the chromosome number to half. Meiosis occurs in reproductive organs, reproductive cells. Meiosis occurs in reproductive cells. It reduces, अगर क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 है तो इसकी मियोसिस अगर होगी तो n इज इक्वल टू 2। It reduces chromosome number to half, therefore it is called as reductional division. Yes, 9th ही, 9th ही बेटा, माइक ऑन करो जल्दी से फटाफट से, 2 minutes more, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स है दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से, बस फटाफट। दैट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, जल्दी से बताओ क्या होती है? सेल वॉल। प्लांट सेल की बात करते हैं, आउटरमोस्ट लेयर इज सेल वॉल। ठीक है, आप ही जल्दी से बताइए, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल।
बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट गर्ल. Who discovered cell? Who coined the name cell? Robert Hooke. रॉबर्ट हुक. बिल्कुल ठीक है. Which division help in? एक और बता दीजिए. Which division helps in gametes formation? Sperms and eggs. Mitosis की meiosis? Meiosis. It is meiosis. Which division? एक question. The boy is sitting near the mic in 90. Which division helps in increasing the number of same cells? Mitosis. Mitosis. Mitosis helps in growth. Mitosis increases the number of similar cells. Diagram जरूर करना mitosis and meiosis का. Right? Raisins. हाँ जी बेटा. ninth B बेटा. माइक ऑन कीजिए. Raisins होते हैं किशमिश. ठीक है. They are placed in water. They swell. Why? Because the water is hypotonic की isotonic. Hypotonic. Hypotonic water जो है वो hypotonic है. ठीक है जी. चलिए देखो जरा, अगर सेल में टिश्यूज हमने करवाए हुए हैं इसलिए नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट सेल. प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या फर्क है? एनिमल सेल में मेम्ब्रेन नहीं है. सॉरी सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल एब्सेंट. स्टेप वैक्यूल एब्सेंट. लिख लो. एनिमल सेल्स सेल वॉल एब्सेंट, स्टेप वैक्यूल एब्सेंट, lysosomes present. Please repeat. माइक को मत छेड़ो बेटा. 9 थी, माइक को मत छेड़ो. Please repeat. Lysosomes present in animal cells but absent in plant cells. Lysosomes present in animal cells but absent in plant cells. और उसके बाद centrioles. Centrioles present in animal cells but absent in plant cells. ठीक है जी. ये कुछ पॉइंट्स है. बाकी देयर आर मेनी अदर, है ना. फिर हम एग्जाम्स के बाद बात करेंगे तो आई विल टेल यू समथिंग इन डिटेल फर्दर. ठीक है. बस कंडीशन ये है, अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर. ठीक है बेटे. सजेशन भी है, कंडीशन भी है. तो आओ सीखते हैं मोशन और लॉज ऑफ मोशन को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो बेटे सबसे पहले मेरे को ना आपका एक बेस बनाना पड़ेगा. क्या बेस बनाना पड़ेगा? फॉर यूनिफॉर्मली. सभी बच्चे मेरा नाम तो जानते ही होंगे, धीरज वशिष्ठ. टीचर का नाम जरूर पता होना चाहिए बेटे. फॉर यूनिफॉर्मली accelerated and deaccelerated motion. सबसे पहले तो बच्चों को ना ये हेडिंग ही क्लियर नहीं होता. इसका मीनिंग समझ लो. एक्सेलरेटेड का मीनिंग ये है कि आपका बॉडी फास्ट होगा. ज्यादा जैसे ही टाइम बीतेगा तो बॉडी विल स्पीड अप. ओके. लेकिन बेटे अगर यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग ये है कि बॉडी जो फास्ट होएगा ना उसको फास्ट होते हुए जर्क नहीं लगेगा, कहीं भी झटका नहीं लगेगा. वो एक रिदम से तेज होएगी. तेज होते होते तेज होएगी. जैसे एक बंदे ने अपना बाइक नेशनल हाईवे पे उतारा, फिर उसने देखा नेशनल हाईवे बिल्कुल साफ है, तो वो इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. ये लाइक दिस, तेज होते होते तेज. ऐसे नहीं होएगा. देखो जर्क सा नहीं आएगा. इतना तेज हुआ फिर तेज. ऐसे नहीं होएगा. अगर जर्क लग गया तो वो यूनिफॉर्मली नहीं है. और डी एक्सेलरेटेड का मतलब है बॉडी स्लो हो रही है टाइम के साथ.
और अगर यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड है तो उसका मीनिंग भी ये है कि उसने स्लो होते हुए एक सारता बना रखी है, धीरे होते होते धीरे हो रही है बट ऐसे नहीं होती एकदम से जर्क सा लगा के रोक दिए। आप ये कह सकते हो यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड का मीनिंग, जैसे आपके पापा को पता लग गया कि उनका घर 100 मीटर दूर है, वो बाइक से आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना घर देख के बाइक के एक्सेलरेटर को ग्रेजुअली स्लो करा, ताकि गेट तक खुद ही रुक जाए। और आप टीनेजर्स कैसे करते हैं, ड्राइव करते हैं, या बच्चे कैसे करते हैं, वो जाते हैं एकदम से घर गेट के आगे, क्यों, उसमें बाइक कर वो ऐसे जर्क लग गया, जैसे ही जर्क लग गया तो वो यूनिफॉर्मली नहीं रहा। अगर चीज स्लो होते होते रिदम से स्लो हो, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड, रिदम से तेज हो, तेज होते होते तेज हो, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट होता है। डीएक्सेलरेटेड में, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है। और बताना चाहूंगा डीएक्सेलरेटेड इज आल्सो नोन एज रिटार्डिंग। पहले तो ये मीनिंग क्लियर हुआ। तो मेरे से कोई बच्चा बोले सर इसका मतलब आप वो मोशन नहीं डिस्कस करोगे जिसमें जर्क लग के स्लो हो रहा है या जर्क लग के फास्ट हो रहा है। यस, वो मैं मोशन आज नहीं डिस्कस करूं, ना ही वो आपके सिलेबस में। ओके, तो अगर आपके सिलेबस में है बॉडी फास्ट हो रही है तो सिस्टमेटिकली फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है तो सिस्टमेटिकली स्लो हो रही है। अब इसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं जो मोशन को गवर्न करती है, इन इक्वेशंस के ऊपर ही मोशन चलता है। अब वो जो इक्वेशंस हैं इन 5 सिंबलों से बनी हुई है, इन 5 सिंबलों से। और गौर से देखो, टीचर ने ऊपर से नीचे तक इन 5 सिंबलों को अल्फाबेटिकली लिखा है। ए सबसे पहले आता है इंग्लिश में और वी सबसे बाद में। ओके, इन 5 का कंपैरिजन करें तो क्लियर। और दूसरी बात, इस ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद करना बहुत जरूरी है, वरना आपको पेपर में पता नहीं लगता कौन सी चीज गिवन है कौन सी नहीं। यूनिट से आप पहचान सकते हो। आप इसका मीनिंग है टाइम और यूनिट है सेकंड। इसका मीनिंग है बेटे, शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी शुरुआती वेलोसिटी, और ये नीचे वाला कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी। और याद रहे इन दोनों का जो यूनिट होता है सेम होता है। कौन सा इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है इनका, मीटर पर सेकेंड। कौन बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज एस, एनीबॉडी इन द क्लास। डिस्टेंस। तो 3 अभी तक सही आंसर नहीं आया, और एक बच्चे ने एकदम से जवाब दिया भी है लेकिन वो गलत है। शाबाश, डिस्टेंस। याद रहे सारे बच्चे इसको डिस्टेंस कह रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं होता बेटा, फिर आप गलत मलत याद करते हो। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्टेंस नहीं होता ये डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट होता है मीटर। अब फर्क क्या है दोनों में, अगर कोई बच्चे का घर यहाँ पर है, होम, यहाँ पर उसका स्कूल है, और वो घर से स्कूल आया, तो वो ऐसे रास्ते से आया, ये जो व्हाइट लाइन की लंबाई है इसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन मान लीजिए उस बच्चे को उड़ना आता हो, तब तो वो स्ट्रेट लाइन में उड़ के आएगा ना, येलो कलर वाले पाथ से, स्ट्रेट लाइन। तो जो येलो कलर वाला होता है ना, येलो कलर वाला, वो होता है ये एस, और उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल होता है। ये कभी भी डिस्टेंस नहीं होता एस। एक कंडीशन में डिस्टेंस हो सकता है, अगर ये व्हाइट वाला रास्ता ऐसा ना होता, होता ही स्ट्रेट लाइन में, असली रास्ता भी स्ट्रेट लाइन में होता घर से लेकर स्कूल तक,
तब ही इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कह सकते। अदरवाइज चाहे बच्चा असली रास्ते से आए या व्हाइट वाले से, फिर भी एस का मतलब व्हाइट वाला नहीं है, येलो वाला है। पहली बात तो ये सारे बच्चे नोट कर ले, सबका गलत था जितने बोले। दूसरी बात बेटे, अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास इन सिंबल्स को लेते हुए इक्वेशंस होती हैं, और कोई भी इक्वेशन 5 सिंबलों की बनी होती है, नहीं सॉरी 4 सिंबलों की, 4 सिंबलों की। एक सिंबल उसमें मिसिंग होएगा, ये पक्की बात है, एक सिंबल मिसिंग होएगा। जैसे इन चारों में से मैं एक यहां पर लिख रहा हूं, गौर से देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब गौर से देखो, टीचर ने इसको टाइम वाले के सामने लिखा है, इसका मतलब है ये वाला टाइम इसमें ऑर्फन सिंबल है, ऑर्फन। कोई बच्चा बोलेगा सर ऑर्फन का मीनिंग तो अनाथ नहीं होता, हमने इंग्लिश में याद करा हुआ है। यस, इसीलिए तो इसको ऑर्फन सिंबल बोलते हैं। यानी इस इक्वेशन को बनाने के लिए वी भी यूज हो गया, यू भी यूज हो गया, ए भी यूज हो गया और एस भी यूज हो गया। 5 में से 4 यूज हो गए, टाइम यूज नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन कहती है मेरे को अपना फॉर्मेट बनाने के लिए टाइम का सिंबल चाहिए ही नहीं, इसीलिए इस इक्वेशन ने टाइम को ऑर्फन सिंबल बनाया या बताया। कोई बच्चा बताएगा अगर मैंने ऐसे ही v को ऑर्फन सिंबल बनाना हो, v को, तो यहां कौन सी इक्वेशन लिखूं मैं? v को ऑर्फन सिंबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना आती हो। एनीबॉडी? बाकी चारों सिंबल आने चाहिए, बस फाइनल वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। एनीबॉडी? भाई बताना चाहिए, मैं तो समझ नहीं आता पेपर कैसे दोगे फिर। s S इज is equal to ut plus half at square. एक बच्चे ने आखिर में बता ही दिया, और ये बच्चा लेट मी टेल यू 9th बी का बच्चा था कोई भाई। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। अच्छा, अब देखते हैं कोई और क्लास इसका मुकाबला कर पाती है। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें s ऑर्फन सिंबल हो, यानी उसमें s नहीं आना चाहिए। T is equal to u plus at. फिर से वही बच्चा बोल रहा है, कोई और बच्चा नहीं है या जो इसका मुकाबला कर सके? बेटे व्हाट इज योर गुड नेम? जो बच्चे ने जवाब दिया अभी, Sir Navkaran Singh. नवकरण सिंह। इसका मुकाबला करने वाला कोई बच्चा नहीं है सारे सेक्शंस में? ले भी नवकरण, इतने सेक्शनों में से कोई भी बच्चा तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब हार तैयार ही, मुकाबला करके हारना अलग बात है, लेकिन सारे सेक्शनों के सारे बच्चे हार गए तुमसे, कोई बच्चा है ही नहीं मुकाबला करने वाला उससे। वेरी गुड। तो इस बच्चे ने बताया सर हम ये बता देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस। ले भाई नवकरण, अब नवकरण और बाकी बच्चे सारा स्कूल एक तरफ, नवकरण अकेला। देखते हैं मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें एक्सेलरेशन मिसिंग हो। शाबाश, नवकरण एक तरफ, सारा स्कूल एक तरफ, जल्दी बताओ। तो नहीं बता पा रहे आंसर इस बार, तो स्कूल भी हार गया और नवकरण भी, लेकिन ये होना Force नहीं। is equal to mass into velocity. नहीं बेटे, इन्हीं 5 सिंबलों में से 4 सिंबल यूज करने हैं, इन्हीं 5 में से 4 करने हैं, बस ए नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं पता तो सभी बच्चे नोट कर ले, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में डाल के बाहर टाइम से मल्टीप्लाई। अब आखिरी मुकाबला, नवकरण एक तरफ, सारा स्कूल एक तरफ। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती।
ऐसी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बेटे मैं कह रहा हूं ये बाकी के 5 में से 4 सिंबल यूज होने चाहिए, यू नहीं यूज होना चाहिए। देखो सारी ऐसी लकी हैं, ए के सामने ए नहीं यूज हो रहा, एस के सामने एस नहीं यूज हो रहा, और इसके सामने टी नहीं यूज हो रहा, यानी एस इज द ऑर्फन सिंबल फॉर दिस इक्वेशन। इसी तरह से जो मैं यहां लिखना चाहता हूं उसमें यू ऑर्फन सिंबल होना चाहिए। बता सकते हो? कोई नहीं बता रहा स्कूल में बेटे। इसका होता है एस इज इक्वल, लिख लो सभी बच्चे, फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ये 5 इक्वेशनें होती हैं, पांचों की पांचों आपको आनी चाहिए, वो भी 9th क्लास तक ही आनी चाहिए। टोटल वैसे 12 होती हैं, तो चलो आपकी क्लास तक 5। अब आप सुनो, अब इसका फायदा सुनो, शाबाश। देखो मैं आपको क्वेश्चन निकालना सिखाता हूं। पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा, वो कैसे सॉल्व होएगा उसको सिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कितने बच्चों को ये आता है कि सर अगर आप यहां न्यूमेरिकल लिख दोगे, अगर आप यहां न्यूमेरिकल लिख दोगे तो मेरे को मेथड पता है कि इन पांचों में से कौन सी इक्वेशन उसको सॉल्व करेगी। कौन बच्चा क्लेम करता है, मैं और वादा करता हूं पूछूंगा नहीं उससे, लेकिन सच बोल रहे हैं, कौन बच्चा कहता है कि सर मेरे को वो मेथड पता है जिससे मैं जजमेंट कर लूंगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के कौन सी इक्वेशन उसको सॉल्व कर। सच बोल रहा है बस, रेज योर हैंड। एक बच्चा क्लेम कर रहा है, व्हाट इज योर नेम बेटे? सर नवकरण सिंह। नवकरण है। अब हम देखते हैं, बाद में देखेंगे कि ये बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ। मेरे को ये लगता है 99% ये झूठ बोल रहा है। 99 लग रहा है, 99%। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, शाबाश, ए बॉय, ध्यान से सुनो, ए बॉय थ्रोज अ बॉल, a boy throws a ball vertically up from surface of earth. A boy throws a ball vertically up from surface of earth. ठीक है बेटे? it reaches topmost point in 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। हाउ हाई डज इट गो? हाउ हाई डज इट गो, ये क्वेश्चन। ले भाई नवकरण बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होगी। और बाकी स्कूल भी, कोई भी बच्चा इसको बताए कौन सी इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन से सॉल्व होएगा, किससे होएगा बताओ? बेटा इनका सीरियल नंबर डाल देता हूं, चलो 1, ये 1, ये 2, 3, बताओ कौन से सीरियल वाली यूज होगी? हाँ भाई नवकरण बताओ अब। सर इसमें यू होगी 0। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को यू जीरो नहीं, मेरे को तो इक्वेशन बताओ कौन सी। और वैसे भी तुमने बोला सर यू जीरो। अब मेरे हाथ में एक बॉडी रखी हुई है, ये मार्कर रखा हुआ हाथ में, इसको मैंने ऊपर को फेंकना है, ठीक है, और जीरो वेलोसिटी है। फेंकियो जरा। जीरो वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका जा सकता है क्या? सोच सर के। यू उसकी रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट 0 होगी, वी फाइनल उसकी जो वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा वो होगी। किसी भी बॉडी को रेस्टेड पोजीशन में रख के जीरो वेलोसिटी होती है, और जीरो वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका ही नहीं जा सकता। छोड़ दो बेटा तो इस बच्चे का हमने प्रूव करा कि नहीं क्लियर। अब ध्यान से सुनो, ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं होता। अब ध्यान से सुनो कि
आपका मेथड क्या है इसको सॉल्व। आपने पेपर में क्या करना है बच्चे, आपने सॉल्यूशन करते वक्त धीरे पहले इन्हीं 5 सिंबलों को लिख लेना। कैसे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ए एस टी यू वी, मैं इधर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है रफ वर्क कर रहा हूं। मैं इधर इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरी बॉडी से छुप ना जाए बोर्ड, आपने तो इधर ही लिखना है लेफ्ट साइड पर पेपर में। तो 5 सिंबल आपने लिख दिए, गॉट इट। अब धीरे धीरे डाटा पुट करो, कितनी देर में टॉप पर पहुंची, 5 सेकेंड, टाइम के सामने 5 सेकेंड लिख, राइट। कितना ऊंचा गई वो, हाइट पूछी हुई है हमें, हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर, इसलिए एस के सामने क्वेश्चन मार्क। और जब भी वर्टिकली ऊपर जाती है बॉडी, सभी बच्चों को पता है कि इसको लेना होता है -10 मीटर पर सेकेंड अर्थ के सरफेस पर। ओके, अब वो कहते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचती है। टॉप मोस्ट, देखो कोई भी बॉडी ऐसे गई, देखो ये गई टॉप पर गई, टॉप पर गई, टॉप पर गई, टॉप पर रुके, ऊपर जाते जाते स्लो पड़ रही है, टॉप पर जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस जब आती है तो तेज होती है। इसका मतलब है जाते हुए टॉप पर जब कोई बॉडी पहुंचेगी टॉप पर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी भाई साहब, ना कि इनिशियल। इसका मतलब है इस पूरे डाटे में उस बंदे ने कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी ही नहीं हुई, ना तो दी है ना तो आस्क्ड है, ना तो दी है ना तो आस्क्ड है। अगर आस्क्ड होती इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता। जिस सिंबल के ऊपर ना तो डाटा लिखा हो ना ही क्वेश्चन मार्क का सिंबल लिखा हो, उस सिंबल को बोलते हैं ऑर्फन सिंबल, मतलब नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। और जो सिंबल ऑर्फन हो वो कौन सा है, यू, यू से यू मैच करा दो, उसके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगी। ऑर्फन सिंबल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड मैच ऑर्फन सिंबल ऑफ दिस चार्ट। और कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जिसने ये चार्ट नहीं बनाया होगा। ऑर्फन सिंबल ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन शुड मैच ऑर्फन सिंबल ऑफ द चार्ट। और जो ऑर्फन सिंबल के सामने इक्वेशन लिखी होगी वही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेगी। ये होता है मेथड, हाउ टू पिक अप द इक्वेशन। पता लग गया बेटे। सो इसलिए S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, तो S की जगह हमने ऐसे ही रखा, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम को 5 सेकेंड माइनस हाफ, एक्सेलरेशन को 10 विद नेगेटिव साइन, और टाइम को फिर से 5 का स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, और यहाँ 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर तो 25 है ही है, 125 मीटर। तो अगर मैं क्लासमेट होता और मेरे टीचर ने ये कराया होता तो मैंने एकदम से अपने फोन से इसका फोटो खींच लिया होता। तो आपके पास फोन नहीं है लेकिन इसको नोट कर लिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में क्या है, 5 इक्वेशन का चार्ट है, उनके यूनिट लिखे हुए हैं, कैसे इक्वेशन सिलेक्ट करी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेशन करी हुई है। तो बहुत समझदार बच्चा होगा जो इसको नोट कर लेगा। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ओनली 2 मिनट्स, उसके बाद ये चार्ट आपके पास कभी नहीं दिखेगा। इस टेक्निक को बोलते हैं ऑर्फन सिंबल मैचिंग टेक्निक। ऑर्फन सिंबल मैचिंग टेक्निक कितने बच्चों को आती थी? नो वन। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि वाकई आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है कि नहीं। मैं एक क्वेश्चन डालूंगा, इस बार आपने करके दिखाना है। एक बार फिर से सुन लो कैसे करना है। आप क्या करोगे,
दिए हुए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे और इन 5 सिंबलों को वर्टिकली अल्फाबेटिकली लिख लोगे और जिसके सामने डाटा आपको पता है वो लिख दोगे और जो चीज निकालनी है वहां क्वेश्चन मार्क डालोगे। 5 सिंबलों में से एक सिंबल जरूर ऐसा बचेगा जिसके सामने कोई भी निशान नहीं होएगा, ना तो क्वेश्चन मार्क का और ना ही डेटा वाइज। उस सिंबल को पांचों में से कोई एक सिंबल, उसको ऑर्फन सिंबल बोलेंगे। वो ऑर्फन सिंबल हमारे चार्ट वाले ऑर्फन सिंबल से मैच करना चाहिए और उसके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ऑर्फन सिंबल उसमें मिसिंग होना चाहिए। मिसिंग, देखो यू इसके अंदर मिसिंग है, यही इक्वेशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेगी। इसको बोलते हैं प्रॉपर वे टू सिलेक्ट द इक्वेशन। वरना तो बच्चे सारे तीर तुक्के मारते हैं, इससे नहीं हुआ उससे कर लो, उससे नहीं हुआ इससे कर लो, इसका डाटा उसमें से निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो। ये सब फिजूल मेथड है, ये है सर असली। ओके, मैं आपके आपके सामने एक और क्वेश्चन डालने लगा हूं, देखते हैं कौन बच्चा उसको करता है। ओके, लो पहली बार मैं इसको चार्ट को रख लेता हूं, ये आपके सामने स्पेस बनाई, ठीक है। ये लो बेटा, चार्ट मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि बहुत से बच्चे सुस्त बच्चे होते हैं जो चार्ट को बनाते नहीं है, वो सोचते हैं किताबों में मिल जाएगा चार्ट। देख लेना जाकर मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, अब हम देखते हैं बेटे क्वेश्चन। शुड आई स्टार्ट? ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, अब मेरे को करके दिखाना है आपने। लो, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट ना लिख के उसको समझाऊंगा। बेटे ऐसा है, यहां पर ना एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर यहां इलेक्ट्रीशियन कोई रिपेयर कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर इलेक्ट्रीशियन रिपेयर कर रहा है और ये इलेक्ट्रीशियन नोट करता है कि पीछे से एक ट्रेन आ रही है और इसके पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन। वो देखता है कि जब इस ट्रेन का इंजन यहां से निकलता है, पोल को क्रॉस करता है, पोल को क्रॉस करता है, तो वेलोसिटी ऑफ इंजन, ट्रेन के इंजन की वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर वो कहता है इतने में ये ट्रेन फास्ट हो जाती है। फिर इसका आखिरी वाला डिब्बा होता है जिसको गार्ड बोगी बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, इंजन बोगी। तो कहता है जब गार्ड बोगी निकली तब भी मैंने वेलोसिटी नोट करी। हम कहता मेरा पोल यहां पर रह गया था और ट्रेन इतने में आगे निकल गई थी, तो ट्रेन का जो गार्ड बोगी है उसने मेरे को क्रॉस करा, ट्रेन फास्ट हो रही थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थी और उसने हमें इसकी वैल्यू दी वेलोसिटी ऑफ गार्ड, गार्ड बोगी, बोगी मैंने होता है डब्बा, कंपार्टमेंट भी बोल देते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कहता मैं आपको टाइम बताऊं कितनी देर में इसने मेरे पोल को क्रॉस करा। हमने कहा बताओ जी टाइम। कहता ट्रेन टेक्स टाइम टू क्रॉस दी पोल, टाइम टू क्रॉस पोल। कहता मैंने अच्छे से नोट करा, उसको पूरे 10 सेकंड लग गए थे। ओके, हमने कहा जी ठीक है, सब कुछ देख लिया, अब पूछना क्या चाहते हो। कह रहा मेरे को ये बताओ कि वो जो ट्रेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यही ट्रेन यहां पर दिखाई है, यही ट्रेन यहां पर दिखाई, वो ट्रेन कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज, एल इज क्वेश्चन मार्क, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। शाबाश, सॉल्व करो। लेंथ ऑफ, सर फर्स्ट इक्वेशन। नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे नहीं, मैंने पूछा नहीं क्वेश्चन, मैंने पूछा ही नहीं है कौन सी क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को तो। शाबाश, आपको 3। सर 250 मीटर। पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिखो,
पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिखो, उसके सामने डाटा लिखो। सर 250 मीटर। ओके ओके, देखते हैं। उसके एक सिंबल के सामने क्वेश्चन मार्क भी आएगा। शाबाश। अगर पांचों सिंबल हम लिखें ऐसे, ASTUV, एस का मतलब इसकी यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट भी मीटर है, तो एस को एल के रूप में पूछा हुआ है। यूनिट सेम है ना, लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, इसीलिए यूनिट्स को याद करना बहुत जरूरी है। ओके बेटे, इंजन की जो वेलोसिटी होगी वही तो ट्रेन की स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, क्योंकि इंजन ट्रेन से तो जुड़ा हुआ है, तो जो इंजन की वेलोसिटी है वही ट्रेन की होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और जब ट्रेन निकल गई, गार्ड की वेलोसिटी बोल रहा है, तो गार्ड किससे जुड़ा हुआ है? ट्रेन से, तो यही ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम कितना लग गया उसको क्रॉस करने में? 10 सेकेंड। कौन सा ऑर्फन सिंबल बचा? सभी बच्चे बताओ, विच इज द ऑर्फन सिंबल? ए। नहीं, मैं एक बच्चे से, तुमने नहीं बोलना भाई नवरीत। अगर बाकी बच्चों ने नहीं बताया ना कौन सा ऑर्फन सिंबल, मैं ये क्लास यहीं छोड़ रहा हूं। आपको सबको बताना है, मैं सारी क्लास को खड़ा कर सकता हूँ। ज्वाइंट पनिशमेंट बोलने मिलेगी, एक दूसरे के सहारे मत बैठो। व्हाट इज द ऑर्फन सिंबल? ये पढ़ा बेटे, मैं मार्कर आई एम गोइंग, बताना पड़ेगा आपको। 10th ए का बच्चा एक एक करके ले लो, आगे क्वेश्चन होने ही नहीं, मैं एक एक करके खड़ा करती हूँ। लो भाई, 10th ए फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच के दोनों बच्चे खड़े हो जाएं, दोनों बच्चे खड़े हो जाएं फर्स्ट बेंच में। 10th ए सरदार बच्चा, स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। माइक पे आजा, बताओ इसमें ऑर्फन सिंबल क्या है? ए। ये पहले बोलने में क्या था? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? Why were you not talking earlier? माइक उठाओ, पास करो फेस के। बताओ पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? जब मैंने खड़ा किया तो ही क्यों बोले? सॉल्व कर रहे थे। मैं तो टीचर से बात कर रहे हो कि नहीं? टीचर आपको पढ़ा रहा है। चलो दूसरे बच्चे को बुलाओ, साथ वाले को। आ जाओ भाई तुम भी। एक एक से हो जाएगा, जितना मर्जी टाइम वेस्ट हो जाए। हाँ भाई बताओ, कौन सा ऑर्फन सिंबल है? ऑर्फन सिंबल कौन सा है इस क्वेश्चन में? ए ऑर्फन सिंबल है। एक्सेलरेशन क्यों है? क्यों होता है ऑर्फन सिंबल? क्यों है? क्यों है ऑर्फन सिंबल? क्या तरीका बताया था? गिवन नहीं है, ऑक्सफोर्ड है। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। क्योंकि ना तो ये गिवन है ना ही आस्क्ड है, ना ही गिवन है ना ही आस्क्ड है। बैठो, शाबाश। तो अब उसके अगला बच्चा आ जाए, नेक्स्ट बच्चा आ जाए, नेक्स्ट बच्चा आ जाए। बेटे अगर ये ऑर्फन सिंबल है तो कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इन पांचों में से फर्स्ट। फर्स्ट क्यों करेगी ये भी बताओ। क्यों करेगी फर्स्ट? आपका आंसर सही है, फर्स्ट सही है, लेकिन क्यों? एक्सेलरेशन निकालना है। अरे एक्सेलरेशन निकालने का क्या मतलब? यहां तो एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं हुआ। निकालने का मतलब होता है मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये इक्वेशन तुमने कैसे बता दी फर्स्ट यूज होगी? वेरी सैड, वेरी सैड, नॉट ए गुड लिसनर। इस बार असली डांट लगा रहा हूं मैं आपको, असली, बिल्कुल असली। अगर मैं क्लास में होता तो पनिशमेंट भी देता। अगला बच्चे को भेजो, जाओ। बताओ बेटे, इसने बोला फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज करनी? Sir, because A is the orphan symbol. यस, ऑर्फन सिंबल इधर है और ये भी ऑर्फन सिंबल से ऑर्फन सिंबल मैच हो गया, इसलिए ये इक्वेशन यूज करनी। क्या नाम है बेटे आपका? Sir, Harshveer.
बहुत अच्छा आंसर दिया, शाबाश। तो आप कहोगे सर S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू T। ओके, और अब डाटा पुट कर दो बस। S की जगह L आ जाएगा, देखो U की जगह 20 और ये 30 और ये 2 और ये टाइम हो गया 10। तो किसी बच्चे ने ये शुरू में ही बता दिया था कि सर इसका आंसर 250 मीटर होगा। जिन बच्चों को अब ये मेथड क्लियर हो गया, ऑर्फन सिंबल मेथड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। सुस्ती नहीं करनी करके। मैम जिनको नहीं समझ आया उनका लेफ्ट हैंड होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका कोई भी हेड नहीं खड़ा हुआ, मेरे को चाहिए ही नहीं बच्चा वो क्लास में। मैम जिसका कोनों में से कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ ना, ऐसे सुस्त बच्चे को बाहर कर दो। एक या समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। मैं चेक कर रहा हूं इंडिविजुअली। लेट मी सी। ए सेक्शन डाउन मैं देख लिया सभी को। 10th ई सारों का देख लिया डाउन बेटे, शाबाश। 10th सी में सारों का डाउन। 9th भी देख लिया, बी भी देख लिया, शाबाश। बस देखो बेटे, मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्ड जरूर बोले, लेकिन अब देखो सारे बच्चों के हाथ खड़े, सबको आ गया टेक्निक। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स दो रिश्ते ऐसे हैं, अगर ये थोड़ा बहुत गुस्से से बोले भी, कभी गुस्सा नहीं करना होता, क्योंकि दे आर देयर योर वेल विशर्स। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके बाद आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल कभी नहीं भूलोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे, गारंटी है। शाबाश। इस बार कोई बच्चा बोलेगा नहीं कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, सिर्फ सोच के रखना है, जिसको मैं बुलाऊंगा वही बताए। ओके, योर अटेंशन। आपने पर्सनल लेवल पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के ऑर्फन मेथड से इक्वेशन को सोचना है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, करना नहीं है न्यूमेरिकल, इक्वेशन को सोचना है। देखते हैं आप सारे सही सोच पाते हो कि नहीं। ओके, सो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। शाबाश। सभी बच्चे स्टेटमेंट, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, तो आप देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन ये है, एक कार was moving, a car was moving at 20 meter per second on applying brakes, it sets an acceleration, deceleration लिखना चाहिए, it sets a deceleration, let's change it, it sets a deceleration in the car such that, in the car लिखना चाहिए, such that car stops, ओके। कवरिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर देती है, कवरिंग इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अब आप मुझे पूछते हो क्या है, व्हाट इज डी एक्सेलरेशन। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं बेटे, सिर्फ आपने इक्वेशन सोचनी है और उसका सीरियल नंबर सोच कर रखो, 1 2 3 4 5। सभी बच्चे अपना करेंगे, सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को सोचना है। और एक दूसरे से बात नहीं करनी प्लीज, से बात नहीं करनी। क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं,
एक कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसमें ब्रेक लगा दी गई और कार रुक गई है, रुकते रुकते भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। तो कार में ब्रेक्स ने कितना डी एक्सेलरेशन पैदा करा? ब्रेक्स ने कार में कितना डी एक्सेलरेशन पैदा करा? शाबाश। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों का एक ही सिंबल होता है, ये वाला। शाबाश। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, अपनी इक्वेशन का सीरियल नंबर सोच के बैठेगा, 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर सोचना है। सोचना कैसे है? वही तरीका लगाना, ASTUV, ये वाला तरीका। ऑर्फन सिंबल शुड मैच ऑर्फन सिंबल। जल्दी करो, याद रहे, स्टॉप कर लिया बाद में कर। अपनी अपनी इक्वेशन सोच के रखनी है, सभी ने इधर उधर नहीं देखना। 10th क्लास, नॉट सीरियस। कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा, उसकी फोटो को जूम करके, कैमरे से फोटो करके साथ के साथ प्रिंसिपल को व्हाट्सएप कर दूंगा, साथ के साथ विद रिक्वेस्ट के फॉरवर्ड इट टू द फादर ऑफ द चाइल्ड, ताकि वो अपने बच्चे का प्रूफ दे सके, देख सके कैमरे में। जल्दी से जल्दी से। अच्छा, अब काफी बच्चों ने सुन लिया होगा। अब अपने बेटे बिना डरे, किसी भी बच्चे ने डरना नहीं। जैसे ही मैं इस पेंसिल को इस डिब्बी के ऊपर हिट करूंगा, रिमोट के ऊपर, सभी बच्चे अपना सीरियल नंबर बताएंगे। इक्वेशन इंग्लिश में बताना है, 1 2 3 4 5। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? जैसे ही, बिना डरे, एकदम से ऊंची आवाज में, सारे बच्चे जहां से बैठे हो वहीं से, जैसे ही मैं हिट करूंगा, बिना डरे, चाहे आपकी गलत भी हो जाए। विच इक्वेशन? बताओ बेटे, आपके कैमरे ही नहीं मिरेकल ऑन, कैमरे कैच नहीं कर रहे। चलो ऐसे करो, फिर आप एक एक क्लास से पूछते हैं। 10th A, बताओ आपकी इक्वेशन कौन सी है बेटे? अच्छा, फिंगर से बता दो, 4 फिंगर। अगर आपको लगता है 4th इक्वेशन तो 4 फिंगर्स, जल्दी करो। अगर आपको लगता है 5वीं इक्वेशन तो 5 फिंगर्स, जल्दी करो। रेज योर हैंड एवरीबॉडी। भाई एक आपने फिंगर्स खड़ी करनी है। कुछ कोई बच्चे जो ऐसे बैठे ना, ऐसे हाथ से नीचे को करके सर जाएगा, कोई ऐसे बैठे हैं ऐसे, पॉसिबल नहीं है मेरी क्लास में। याद रहे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बताना ही है इन पांचों में से कौन सी इक्वेशन। 10th के बच्चे पर्टिकुलरली सुस्त हैं, सारे बच्चे से बाकी बता रहे। बताओ विच इक्वेशन यू विल यूज। फिंगर्स खड़ी करो यार, फिंगर्स खड़ी करो ऐसे। फर्स्ट इक्वेशन तो एक, सेकंड इक्वेशन है तो डबल फिंगर खड़ी करो। रेज योर फिंगर्स एवरी चाइल्ड। ओके, 9th B का मेरे को पता लग गया, 2 बच्चों का, सिर्फ 3 का पता लग गया। मैम जरा इनको बताना, पता नहीं बच्चों को सुनता ही नहीं शायद, इनके मेरे को लिसनिंग, पता नहीं लिसनिंग पूर। टीचर कह रहा है कि आपको फिंगर खड़ा करना ही है, बच नहीं सकते आप। नहीं भाई, प्रिंसिपल को फोन ही करना पड़ेगा, डिसोबीडिएंट है बच्चे। मैं कह रहा हूं एक फिंगर खड़ा करना ही करना है, बच्चे कर ही नहीं रहे। आई एम कॉलिंग, एक फिंगर खड़ा करना ही करना है। कौन सी क्वेश्चन है? रिंग जा रही है वैसे, जल्दी बोलो। ओके ओके, 10th C का भी पता लग गया मोर और लेस। सॉरी 9th C है, सॉरी 9th C। ओके ओके, अब मैं बताना चाहूंगा बेटे, ओपनली बता रहा हूं क्लास में, टीचर्स भी सुन ले। 9th E को छोड़कर बाकी सारी क्लासों ने जवाब दे दिया। 9th E डिसोबीडिएंट क्लास। तो आप कहोगे सर, कार पहले चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड,
u को पुट कर दो और फाइनली वो रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0, 5 मीटर चलते हुए रुकी, s इज इक्वल टू 5 मीटर। एक्सेलरेशन आपने हमसे पूछा हुआ है, तो 5 सिंबलों में से 4 तो यूज हो गए, कौन सा नहीं यूज हुआ? टी वाला। तो टी से टी मैच करा दो। तो जिन बच्चों ने थर्ड इक्वेशन सोच रखी थी, प्लीज रेज योर हैंड। जो बोल नहीं रहे थे लेकिन थर्ड सोची हुई थी, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब। इसका मतलब है बच्चों में कॉन्फिडेंस कम है, सिर्फ बता नहीं पा रहे थे। तो लगभग आपको खुशी होगी, लगभग सभी बच्चों के हाथ खड़े। इसका मतलब है आपको ऑर्फन सिंबल टेक्निक आ ही गई। वैसे इसको सॉल्व भी कर दो अब, चलो सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? जल्दी करो, फाइंड द एक्सेलरेशन। ये थर्ड इक्वेशन ही यूज होएगी। आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। मीटर पर -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटे, बाकी बच्चों का भी देखें, बाकी बच्चे क्या कहते हैं। आपका तो मैंने सुन लिया, शाबाश। 9th बी का एक बच्चा आंसर दे चुका है, बाकी बच्चे बेटे आंसर बोल दो माइक पर। आप गए, अपनी क्लास की इज्जत रखो कुछ ना कुछ। 9th ई में से कोई बच्चा माइक पे आता ही नहीं कभी भी। शाबाश, 9th सी का भी आपको पता लग गया, 9th पता लग गया। 9th ए, 9th ए और ई दो सेक्शन। 9th ए का क्या आंसर है? शाबाश, कोई भी माइक। -40। ओके, 9th ए का भी आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 9th ई में सबसे ज्यादा बच्चे बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बच्चा माइक पे क्यों नहीं आ रहा? आई एम सरप्राइजिंग। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। और टीचर से मैं कॉपरेशन चाहूंगा, पर्टिकुलरली 9th ई वाले टीचर्स, कि बच्चों को भेजो तो सही माइक पर। मैं हाथ तो पकड़ नहीं सकता दूर बैठा बैठा। हाँ बेटे बोलो, कौन सा है? -40 मीटर सेकंड। ओके, अब 9th ई ने भी आंसर दिया है एक बच्चे ने, और तीनों सेक्शनों ने -40 आंसर दिया है। लेट मी चेक कि अगर ये इक्वेशन यूज होती है सॉल्यूशन में तो कैसे यूज होती है, इतना आंसर आता भी है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बी का मतलब 0, यू का मतलब है 20, तो उसका स्क्वायर और ट्वाइस, और ए को निकालना है एस की बजाय 5 मीटर, तो दैट बिकम्स 20 का स्क्वायर होता है 400 बच्चे माइनस के साथ, और इधर आ गया 10a। इसका मतलब ए निकाला है -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस आना ही चाहिए क्योंकि बॉडी स्लो पड़ रही है डी एक्सलेशन। जिन बच्चों ने -40 निकाला उन सभी को शाबाश। और मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कितने बच्चों का -40 है। शाबाश, सच बोलो, कसम है अगर आपने झूठ बोला तो। सभी बच्चों को कसम है पेरेंट्स, जिसका -40 है। ओके, तो लेट मी टेल यू, 9th ई में सेंट्रल लाइन के फर्स्ट 4 बच्चों को छोड़कर, 9th ई के सेंट्रल लाइन के फर्स्ट 4 बच्चों को छोड़कर बाकी सबका -40 है। वेरी गुड, यू हैव लर्न। और ये इसमें से 2 बच्चे तो सुन ही नहीं रहे मेरा लेक्चर, 9th ई के सेंट्रल लाइन में। ओके, तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? इक्वेशंस ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करने आपने सीख ली। लेट मी चेक, एक मिनट। ओके बेटे, अब एक न्यूमेरिकल और करने का वक्त है, सिर्फ एक, उसको हम करते हैं, फिर आप जा सकते हैं। तो इसको हम सभी ने ये चार्ट बना लिया होगा उम्मीद करता हूं। ये देखो बेटे, और कौन से फार्मूले यूज होते हैं
एक ये यूज होता है फार्मूला जो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, नोट कर लो। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सभी नोट कर लो। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट करते रहो साथ के साथ। थर्ड पॉइंट बच्चे, थर्ड पॉइंट, कैपिटल जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और जे को बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये फार्मूला भी कभी कभी यूज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और एक फार्मूला ये याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो टीचर ट्रायंगल डालता है ना, इसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। ओके, ये भी आपको आने चाहिए। इसके बिना याद रखना, वेट इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और याद रखना है, ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर ग्रेविटी कभी मून के सरफेस पर पूछ ले, मून के सरफेस पर, तो 1.63 लेनी है आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहे, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव लेना। फिर बॉडी को ऊपर को फेंकेंगे तो स्लो पड़ेगी, नेगेटिव लिख लेना एक्सेलरेशन। नीचे को आएगी तो तेज होएगी, तो प्लस लेना। इसके बिना, और भी सुन लो बेटे, और भी सुन लो, शाबाश। इसके बिना आपने ये याद रखना है, कोई बॉडी यहां से यहां तक ऐसे सर्कल में भागी तो 3/4 सर्कल 75% सर्कल पूरा कर दिया। तो ये जो येलो लाइन है, इसको तो बोलेंगे डिस्टेंस, येलो लाइन को डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि बॉडी इधर से इधर आई। लेकिन ये जो है ना, जिसके ऊपर टीचर ग्रीन लाइन लगा रहा है, ग्रीन लाइन, एक ग्रीन लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, याद रहे कितने परसेंट सर्कल भागा है वो, 75% सर्कल। तो आप बोलोगे सर ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस आपस में 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आपको हाइपोटेन्यूज जो होगा आर स्क्वायर प्लस। तो ये फार्मूला चार्ट आपके न्यूमेरिकल निकालने में मददगार होगा। और उस बच्चे के मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, बच्चे के मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे जिसने ये चार्ट नहीं बनाया। लिख के देता हूं, लिख के ओपन, वो बच्चे के आने वाले एग्जाम में पुअर मार्क्स आएंगे जिसने ये चार्ट नहीं बनाया। अब आपकी मर्जी है बनाना है या नहीं। वैसे 9th ई के बच्चों से मैं थोड़ा नाराज हूं, इधर वाली लाइन का कोई भी बच्चा लिख ही नहीं रहा। और अगर प्रिंसिपल मैम इस वक्त मेरी क्लास में है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार 9th ई में जरूर आए। एक पूरी लाइन ही नहीं लिख रही मैम। चलो भाई, आज का दी एंड करते।